Okay, so in the previous class, we are solving the exercise 5.2. Right now, we are going to learn the next topic, that is the division of 3 digit by the 1 digit. First of all, we revised the 2 digit division with the 1 digit, 2 digit with 1 digit. For example, 78 divided by 4. 78 divided by 4. So what should I have to do first? Yes, Kavya? मैम Yes. मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा आपको? There will be a network issue. आपने डिवाइड की जगह माइनस लिखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। नहीं, मैंने डिवाइड ही किया हुआ है. Okay, so 78 दिख रहा है। divided by 4. 78 divided by 4. First rule of division, that you have मैम to add the divisor. Yes, Yaduvir? मैम नोटबुक में लिखना है। नहीं, अभी लिखना नहीं है, मैं जब बोलूंगी तब आपको लिखना है. ओके मैम। Okay, I will tell you that you have to be write down in the notebook. Okay, so this is the division. Division का first rule क्या होता है? This is called the division. This is the dividend. Right? So first of all, आपको compare करना पड़ेगा divisor और dividend को. Divisor पहले आपको देखोगे, if divisor is the 1 digit number, अगर divisor 1 digit का number होता है, तो dividend का first digit आपको compare करना पड़ेगा. एक digit है तो एक digit को compare करो. 4 यहाँ पे है means of 1 digit, तो आपको भी यहाँ पे 1 digit को compare करना पड़ेगा. Here is the 4, here is the 7. Which one is the larger, 4 or the 7? Which number is the larger, 4 or 7? 4 बड़ा है? मैम 7। Yes, 7. अगर डिवाइडेंड का नंबर, अगर आप कंपेयरिंग कर रहे हो, डिवाइडेंड बड़ा हुआ तो आप डिवीजन कर सकते हो 1 डिजिट का. बट अगर डिवाइडेंड छोटा होता, मींस 4 से छोटा होता, तब आपको क्या करना पड़ता? आपको 2 डिजिट्स लेने पड़ते. So you can see that dividend value will be larger than the divisor. Then you can take a division by the 1 digit. आप डिवीजन कर सकते हो 1 डिजिट का 1 डिजिट से. So 7 हमें चाहिए, तो हम टेबल बोलेंगे 4 का. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. But we need 7 only. हमें सिर्फ 7 ही चाहिए. तो 7 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 से बड़ा नंबर आ गया, मींस 8 विल बी दैट. सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो स्मॉल नंबर होगा उसको लेना पड़ेगा. So 4 1 are 4. You have to take this one. 4 1 are 4. As you know, division is the repetition of subtraction. So you have to put the sign of the subtraction here. Now 7 minus 4. 7 minus 4. 3। 3. Then you have to take down 8 below. Okay, so there will be 38. Now starting the table, I am writing table here. मैंने 2 का लिखा है, मैं 4 से लिख रही हूँ. 4 3s are 12. Yes. हाँ, ये हमें लिखना है? नहीं लिखना, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी तभी लिखना. 4 5 are 20. 4 6 are 24. 4 7 are 28. 4 8 are 32. 4 9 are 36. And 4 10 are 8. Which number we need? हमें 38 चाहिए और हमारे पास है 36 और 40. As you know, in the rule of the division, if you need a number, you don't have a number in the multiplication table, then you have to take the smaller of that. मैम 36.
मैम 36 आएगा। 36 मीन्स आपको ये वाला चूज करना पड़ेगा। 4 9s are 36. 4 9s are 36 minus. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस, जो सबट्रैक्शन का जो रूल है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। 8 minus 6 2 मैम 3 minus 3 0. 0 0 यस, सो क्या है इसका नाम क्या है? 30 0 मैम रिमाइंडर। यस, वेरी मैम रिमेंबर। Remember students, whenever one person gave the answer, then rest of the student please quiet. अगर एक ने आंसर दे दिया तो बाकी सबको थोड़ा क्वाइट रहना पड़ेगा। And what is the 19th name? 19 को हम क्या कहेंगे? मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, कोटेशन। क्वेश्चन स्पेलिंग भी आता है लेकिन बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका आदत हो जाएगा। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द 2 डिजिट बाय द 1 डिजिट। 2 डिजिट में हमने जैसे किया, जैसे डिवीजन के रूल्स फॉलो किए, सेम आपको 3 डिजिट में करना पड़ेगा। 2 डिजिट में 2 प्लेस आती थी, वंस एंड द टेंस, तो 3 डिजिट में कितनी प्लेस आएगी? How many? 100 tens and ones। Yes, there are 3 places in the 3-digit number: 100, ones, and the tens. So we are going to start the division of the 3-digit by the 1 digit. First example, I will be solve the first, second will be yours. मैम लिखना है। मैं बताऊंगी, आप बार बार ये मत पूछा करो। मैं बता दूंगी कि आपको लिखना है कि नहीं लिखना। आप ये बार बार पूछोगे तो हमें डिस्टर्ब होगा, पूरी क्लास पर डिस्टर्ब होगा। ओके, सो वी आर टेकिंग द 3-digit नंबर 452 divided by 452 divided by 2. So I am arranging this 452 divided by 2. So what is the dividend? Dividend कौन सा है इसमें? ये बुक में नहीं, 452 मैम 452। Yes, 452 is the dividend, and which is the divisor? Divisor. मैम 2 2 is the divisor. Now we have to find out the quotient. So first of all, जैसे हम 2 digit का 1 digit डिवीजन करते थे, सेम प्रोसेस आपको करनी है। यहाँ पे आपको डिवीजर में फर्स्ट डिजिट देखना है, कितने डिजिट है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम यस, आप जो ये लिखा रहे हो ये हमें अपनी नोटबुक या किसी में मैं लिखना है। बता दूंगी कि You have आपको to write लिखना है कि नहीं लिखना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट मत करो। ओके, मैं पहले बता रही हूँ, फिर आपको मैं बोलूंगी कि आपको लिखना है कि नहीं लिखना। डोंट वरी फॉर दैट, मैं टाइम दूंगी अगर लिखना होगा तो, मेरे साथ लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, so first of all we are going to see the divisor. Divisor कितने डिजिट्स का है? 1 डिजिट। डिवीजर है 1 डिजिट का। अब आपको देखना है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड कितने डिजिट का है? 1 2 and 3। डिवाइडेंड इज द 3 डिजिट नंबर। सो आपको ये 1 डिजिट का है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा 1 डिजिट को। If it's a 1 digit, then you have to compare a 1 digit. So let's comparing the two. Okay, 2 and the 4. Which one is the larger? मैम 4 is the larger। Which divided बड़ा होगा। जब आप आंसर दे रहे हो तो उसके बाद आपको म्यूट
करना कंपलसरी है। अगर आप म्यूट नहीं करोगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगी। Okay, so 2 and the 4. 4 is the larger number. But if possible, अगर यहाँ पे छोटा नंबर होता 2 से, for example here there will be a 1. In that condition, what should we have to do? अगर 1 होता तो हम क्या करते? मैम तीनों डिजिट से डिवाइड करते हैं। नहीं, 2 डिजिट थे तो हमने 2 डिजिट ले लिए, तो सेम प्रोसेस आपको करनी है। अगर 1 डिजिट छोटा है तो आपको ले लेने हैं 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट पे छोटे हैं देन हैव टू टेक अ 3 डिजिट्स। फर्स्ट 1 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 3 डिजिट। डायरेक्ट आपको 3 डिजिट नहीं लेना, फर्स्ट कंपेयर करना है 1 डिजिट को। 1 डिजिट छोटा है तो 2 डिजिट लो, 2 डिजिट भी छोटे हैं देन you take the 3 digits. So we are going to start our division, that is 452 divided by मैम लेकिन 4 तो छोटा है। 4 कैसे छोटा हुआ 2 से? 4 कैसे छोटा हुआ 2 से है आशी? 4 is not smaller than 2. 4 is the larger than 2. ये 2 है तो definitely 4 उससे बड़ा है। Okay, so 4 is the larger than 2, so we are going to take a 1 digit by 1 digit division. 2 divided by 4. So 2 ones are 2, 2 twos are 4. So there will be a 4. So आप ले सकते हो 2 twos are 4 minus 4 minus 4 0. 5 आएगा नीचे। Okay. Now there will be a 5. We have a 2. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6. So which one you have to take for 5? आपको 5 लेना है तो उसके लिए आप दोनों में से कौन सा लोगे? 6 is the larger than 5. So which one you have to be take, 4 or the 6? मैम 6। 6 5 है, आपको 6 लेना पड़ेगा कि 4? Definitely 4. Remember one thing family, अगर यहाँ पे जो भी नंबर होगा जिससे को आपको डिवाइड करना है तो आपको उससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, या तो वही नंबर जैसे कि 4 एग्जैक्टली वही नंबर आया तो आपने ले लिया। बट इफ देयर इज अ नंबर नॉट you can see in the multiplication table, then you have to take the smaller number than it. उससे छोटा नंबर, उसके पास वाला नंबर आपको लेना है। छोटा होना कंपलसरी है। अगर आप 5 से बड़ा नंबर जैसे कि मैं 6 ले रही हूँ, then how can you do the subtraction? आप subtraction कैसे कर पाओगे? यस मैम। They are not able to do the subtraction, so we have to take compulsory the smaller number than this, than the division. So we have to choose the 4 for this. So 2 twos are 4. 5 minus 4 1. Again you have to take down 2 क्योंकि बाकी रहा था तो 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. मैं बार बार आपको म्यूट करना नहीं आऊंगी। Okay, so there will be 12 present in the multiplication table of 2, so you can directly choose this one. 2 6 are 12. 2 minus 2 0, 1 minus 1 0. So this is the portion, divisor and the dividend. So now write down the heading in your notebook. Division of 3 digit by 1 digit number. Start writing this thing in your notebook. Division of 3 digit number by 1 digit number. First example.
Start writing in your notebook. Okay, anyone can tell me what is remainder in this example? कितना remainder आया? Ma'am, zero was the Zero. zero is remainder. Only zero you can tell that. लास्ट में जो आंसर आएगा वही होगा ना रिमाइंडर भी. बी फास्ट. आई गिव यू ओनली द 3 मिनट्स. तो आपको 3 मिनट में ये पूरा सम कंप्लीट करना है हेडिंग के साथ. अगर आपने चैप्टर का हेडिंग नहीं लिखा तो लिख ही दिया होगा, आपने एक्सरसाइज सॉल्व की है तो, है ना. मैंने हेडिंग लिख दी है. ऑल्सो राइट डाउन द सम. मैम ये आपने नोटबुक में से किया है. मेरे को समझ नहीं आता है, फिर से बोलो ना. पर क्या लिखा है? I request you again, please, whenever you ask your question, mute yourself. मैम उसकी हेडिंग बताओ. हेडिंग लिखी हुई है डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट. मैम यस. आपने पहला नंबर क्या लिखा है? व्हाट? 400 आपने ऐसा कुछ लिखा है ना 452 डिवाइडेड बाय 2. बी फास्ट. मैम यस. आपने ये कौन सा नंबर लिखा है? फर्स्ट नंबर का ही लिखा है, तो उसमें तो मेरा 146 लिखा हुआ है. फर्स्ट नंबर. 146 डिवाइड बाय 2. नो नो नो, textbook में. ये हेडिंग नया आया, फर्स्ट नंबर ही आएगा ना. हेडिंग ही नया आया तो. पर मैम मेरी डिजिट अलग है. क्या? मैम मेरी डिजिट डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है? आपने ये हेडिंग नहीं लिखा. हेडिंग तो वही लिखा है, पर मैम मेरी डिजिट में ऐसा है कि 146 डिवाइड बाय 2 है मेरे में. 146 आपने क्यों लिया है? मैंने तो यही करवाया है 452 डिवाइडेड बाय. मैम मैम टेक्स्ट बुक में तो वही दिया है. लेकिन मैं टेक्स्ट बुक मैम। में करवाऊंगी ना. टेक्स्ट बुक में से आप खुद भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, ज्यादा एग्जांपल है. ये मैं अपनी तरह से करवा रही हूँ. आई एम नॉट टेकिंग अ टेक्स्ट बुक. आप देख सकते हो मैं टेक्स्ट बुक यहाँ पे पढ़ी है. मैम। टेक्स्ट बुक. ओके मैम. यस सर. मैम मैम ये आपने 5 के नीचे क्या लिखा है? दिस वन. नो मैम, उसके ऊपर. डोंट फॉरगेट द माइनस साइन. मैम 4 के ऊपर. क्या? 4 के ऊपर. मैम आपने वो जो 452 लिखा है ना, उसके ऊपर क्या है? 452 के ऊपर 226. ओके, इसके बाद का नेक्स्ट जो है मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रही हूँ. यहाँ पे लिखा है आप सॉल्व करना है. मेरा बाकी है. मैम किया है. मैम यस. मैम मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है. आपकी स्क्रीन. नेटवर्क इश्यू होगा. आप खुद से ट्राई कर दो, कोई बात नहीं. नहीं दिख रही है तो अच्छी बात है ना. 452 डिवाइडेड बाय 2 खुद से कर दो.
Second example is 735 divided by 5. 735 divided by 5. Here are my example. Solve it. Ma'am, Okay, so 735 divided by 5. 735 divided by 5. Okay, who will be tell me that how can we have to be solve this? ma'am, I can tell. Yes. Ma'am, 1 minute, ma'am. Yes. 1 minute, ma'am, just trying. I cannot hear your voice clear. Please, Chitrali, speak loudly. Yes, Tanishi. Tell me how do I have to be solved? Please fast. We don't have the time. 5. मैं Yes. 5 Very good, Kashi. First compare किया 5 7 को 5 1 जा 5 minus 7 minus 5 2. 3 will be comes down. There will be a 23. 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 15 20 20 5 5 जा 25. कौन सा चूज करना पड़ेगा? 20. जस्ट बिकॉज हमें 23 से छोटा नंबर लेना है, बड़ा नहीं. So 5 तो 4s are 20. 3 will be here and 0. So 5 again comes down 35. Start table of 5. 5 6s are 30. 5 7s are 35. So 5 7s are आप 35. 0 0. Be fast. Give you only 2 minutes to complete the sum. मैम डन No need to say Yes, done. अगर आपका हो गया, that's a very good thing. But please don't tell that you are done. मैम, मेरा भी हो गया. मैम Yes. मैम अगर हम टेक्स्ट लिख रहे तो हमें आपका भी लिखना है. क्या लिख रहे हो आप? अगर मैं लाइक आई एम राइटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक तो आप जो दे जो वो भी लिखना है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक में? टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हो, खुद से सॉल्व भी कर सकते हो. बट ये जो सम्स है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए, तो आप ये कैसे सॉल्व करोगे? आपको टेक्स्ट बुक वाला भी लिखने नहीं है, सिर्फ देखने ही. आप देखो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कि फाइव के ऊपर क्या लिखा है? मैम आपने 735 के ऊपर क्या लिखा है? मैम यस, मैंने ये तो पहले कर दिया था अभी. as I tell you, if you done, please don't tell me that. Just because आप बोल रहे हो तो मैं किसी और की आवाज नहीं सुन पाती हूँ. I'm only listening the voice of one person. अगर कोई और बोलेगा तो मेरी भी आवाज नहीं आएगी आप तक. मैम Yes. आपने 735 के ऊपर क्या लिखा है?
डिवीजन ऑफ 3 डिजिट बाय 1 डिजिट हेडिंग है हमारे सम के। थर्ड एग्जांपल, 629 divided by 4. 629 divided by 4. So I'm solving this. 629 divided by 4. I'm taking the 229. 229 divided by 4. So this is the dividend. This is the divisor. मैम सब में डिवाइडेड और लिखना है, क्या हुआ? सब में डिवाइडेड और डिवीजर लिखना है। ये वाली हेडिंग बार बार लिखोगे आप? नहीं मैम, ये। हेडिंग नहीं को हाँ। डिवाइडेड यस सब में। यस आपको Okay, लिखना है ma'am. ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके सो मैम पर जगह नहीं है ना साइड में लिखने के लिए। this is the 4, this is the 2. This is the division of 1 digit number. So आपको एक डिजिट को 1 डिजिट से कंपेयर करना पड़ेगा। This is the 4. लिखी है ये थर्ड वाले में। This is the 4. This is the 2. Now you have to do the comparison of the 4 and the 2. So you can see that 4 is the larger than the 2. मतलब divisor is larger than the dividend digit. डिवीजर जो है डिविडेंड का जो डिजिट है उससे बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक 2 डिजिट्स। आपको 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, उसको कंपेयर करना पड़ेगा, देन यू हैव टू स्टार्ट द डिवीजन। 22 and 4, which one is the larger, 22 or the 4? मैम 22 22 is larger than 4. What happens generally? आपको नहीं पता चला कि 4 बड़ा है कि 22? Okay, so 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24. We need 22. Right? हमें 22 चाहिए, but we have a 20. So we have to 4. As I give the instruction to you, whenever one answer will be came, then rest of the students have to quiet and mute themselves. Please mute yourself, Rashi. 4 5s are 20. 2 minus 0, 2. 2 minus 2, 0. Now 9 will be comes down. 9. मैम Yes. मैम आप लिख नहीं रहे हो। 4 7s are 28. देखो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, there will be online class, so there will be a network issue also. 4 Yes, is 32. Okay, we have to be take a 29, but we have a 28 and 32. So which one we have to be choose? मैम 28। Yes, we have to choose the 28. So 4 7s are 28. 9 minus 8. 1. 2 minus 2. 0. So this is the quotient and this is the remainder. आपको रिमाइंडर लिखना कंपल्सरी है। Okay, complete this sum.
मैम पर जगह ना मैम हो अपने तो क्या पेंसिल करें? के नीचे क्या डिमेंशन लिखा लिखना है? पड़ेगा, नीचे एरो करके लिख दो, उसके नीचे लिख दो, कुछ भी करो। ओके मैम। पेन के नीचे क्या लिखा है आपने? मैम मैं वापस मैम मैम Yes, Parva, please unmute yourself and tell me what happened. मैम आप जो आज जो लिखा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजोगे? मैं पूरा रिकॉर्डिंग भेजूंगी। ओके मैम। आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो पार्वा। 229 डिवाइडेड बाय 4 करो खुद से, नहीं आएगा। मैम यस मैम इशू तो मैं मुझे आपकी अभी तो आवाज पूरी नहीं आ क्लास को रही सही है, से क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम यस मैम network issue so I can't join the class। मैंने ज्वाइन तो करी थी पर आपकी आवाज और आपकी स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता है कि आपने कौन कौन से सम्स मुझे बताए हैं। ये थर्ड मैंने सम सारी है, क्लास मैंने को ज्यादा नहीं करवाया है। You can take the space of first and second and start the third one. डायरेक्ट आप थर्ड को स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकंड के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दो। मैम यस मैम आपने 9 के नीचे क्या लिखा है? 8 मैम यस ओके नेक्स्ट। मैम हमको नेक्स्ट भी करना है। 728 divided by 3. 728 divided by 3. 728 divided by 3. Okay, so we will be solve this. Harshit, 728 divided by 3. Solve it now. Harshit, please unmute yourself. मैं कल थोड़ा लेट जॉइंट हुआ था इसलिए मुझे पता नहीं कि डिवाइडेशन में कैसे करते हैं। ओके आप देखोगे फिर ट्राई करोगे खुद से समझने की, अदरवाइज यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके मैम।
अनंत, मैम मैं बताऊं? नहीं अनंत बताएगा। ओके मैम। अभी तक कुछ नहीं बताया, ना ही उसने अपना वीडियो भी ऑन किया है। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो अनंत and tell me how can I solve this. We don't want to waste our time. We have a limited time. हमारे पास limited time होता है। बोलोगे नहीं तो फिर क्या होगा? Yadu, you are sitting very relaxing, so you can tell me. आप बहुत रिलैक्स होके बैठे हो तो आप ही बता दो। यदुवीर, मैम yes, how can I solve this? 3 1 3 3 2 6. 3 and 7, first of all we have to be compare them. Then start the table of 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. We want a 7, so there will be a 6 and 9. So what will we have to be choose? हमें कौन सा नंबर चूज करना पड़ेगा? 6 or 9? 6 6. So 3 2s are 6. 7 minus 6, 1, 2 will becomes down 12. 3 4s are 12. 12 directly हमें मिल रहा है। 3 4s are 12. 0 0. 8 will becomes down again. Okay, so here you can see that for we need 8, but we have 6 and 9. हमारे पास 6 है और 9. Which number we have to be choose? We have to again choose 3 2s are 6. 3 2s are 6 minus 8 minus 6 2 0 0. This is the remainder. Complete this fast. We are going to solve the story sum. टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं वो आप अपने आप सॉल्व करोगे। बाकी का मैं जो करवा रही हूँ दैट विल बी एन एक्स्ट्रा थिंग, वो टेक्स्ट बुक में नहीं। मैम 5.3 खुद करनी है। नहीं 5.3 मैं करवाऊंगी। ये आंसर कैसे आ रहा है? 5.3 खुद करनी है। I'm listening to a one person or every person. मैम Why are you shouting first? Tell me. मैम वो 12 के नीचे क्या है? 12 के नीचे दूसरा 12 है। हाँ ओके मैम। मैम 006 के नीचे क्या है? 002 सब्ट्रैक्शन आपको खुद से करना चाहिए। दिस क्वेश्चन विल बी नॉट आस्क मी अगेन। मैम हमें 5.3 के सारे क्वेश्चंस वो सब हमें खुद करने हैं। As I informed you, you don't have to solve 5 and 3 by yourself. I will be doing. मैं आपके लिए आपको करवाऊंगी। सो वही क्वेश्चन बार-बार पूछने का क्या मतलब होता है? तो हमें क्या करना है टेक्स्ट बुक में से? कुछ नहीं करना, nothing. ओके मैम। मैम Yes. मैम Yes.
हाँ 002 के नीचे क्या लिखा है? रिमाइंडर 002 के नीचे रिमाइंडर वो वाला नहीं, उसके ऊपर वाला 002 है ना। ये 6 है, ये 8 है, ये 2 है। ओके मैम। हम ये टेस्ट है। ये टेस्ट कहाँ से हुआ? ये स्टोरी सम है। In a company, there are 633 employees and they are divided in 7 groups to complete work. मैम तो क्वेश्चन कौन सा है इसमें से? यस मैम, क्वेश्चन कौन सा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैम ये स्टोरी सम्स लिखना है। Now you can understand which one is the question. मैम ये क्वेश्चन लिखना है स्टोरी सम का। लिखना है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्वेश्चन है। In a company, there are 633 employees and they are divided into the 7 groups to complete a work. How many employees? In मैम उसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है। 1 group. मैम कंपनी के बाद क्या लिखा है आपने? इसके बाद company, there are how many employees in one group and मैम yes, मैम इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं लिखना। लिखना है क्यों नहीं? मैम आप क्वेश्चन लिखा रही हो इसमें। कंपनी There are 633 employees. In a company, there are 633 employees and they are divided in 7 groups to complete the work. As if you have one company, उसमें 633 employees हैं। Employees मतलब जो काम करते हैं वो। And they are divided into the 7 groups. 633 को divide किया है equally. They are divided in 7 groups equally. So equally divide किया है 7 groups में. Then I मैम हमें ये लिखना है। मैं मैम हमें ये लिखना है। मैम हमें ये लिखना है। डेफिनेटली चलिए, जब मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तब आपका ध्यान कहाँ पे होता है? And continuously बोला, yes, you have to be write this just because this question will be not in your textbook. You are asking me for the previous question. मम्मी Question सबका हो गया। मम्मी सॉरी अपने शॉर्ट How many employees in one group? एक ग्रुप में कितने? How many left? और कितने बचेंगे? So first of all, this is the story sum. So you have to write down the 3 sentences for this story sum. आपको compulsory 3 sentences लिखने पड़ेंगे. First sentence, first जो दिया है वो first number is the 633. तो वो क्या है? Number of employees in company. Number of employees equals to 633. Second, मैम हेडिंग में 33 फिर आया 7. Number of groups. मैम हेडिंग में कुछ नहीं लिखना। स्टोरी सम मैंने लिखा है. ओके मैम। Number of groups. Employees. Divided is 7. Number of employees
divided number of groups employees divided is 7. Now we have to find how many employees in मैम एंड के बाद क्या? number of employees. मैम Yes. मैम Yes. एंड के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, जब कोई बोल रहा हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी क्वाइट. मैं 2 मैम एंड के बाद क्या लिखा है? और मैं बोल रही हूँ तब भी आपको क्वाइट रहना पड़ेगा. मैम दे आर के बाद क्या लिखा है? मैंने सिर्फ जेनरी का नाम लिया तो सिर्फ जेनरी का इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहे, पूरी क्लास को इंस्ट्रक्शन मिल रहे. When I am speaking, then you have to be quiet. I'm not listening that time, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको सुनूंगी कैसे? मैम Yes. मैम फर्स्ट लाइन आपने फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? In a company, there are 630. नो मैम नीचे की फर्स्ट लाइन Story sums. ये वाली नंबर ऑफ number of employees. ओके मैम. मैम बोलो. मैम स्क्रीन रोटेशन ज्यादा हो रहा है. Rotation? मैं तो रोटेट नहीं कर रही हूँ. मैंने तो कुछ रोटेट भी नहीं किया. ओके मैम. मैम आपने फर्स्ट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बाद क्या लिखा है? 633. मैम आपने एंड के बाद क्या लिखा है? How many left? 633 divided by 7. Hayashi. मैम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बाद आपने नीचे क्या लिखा है? Number नीचे of दूसरी groups लाइन employees. Number of groups. नंबर ऑफ मैं बोलूं? यस मैम. Number of employees. Number of groups employees divided. Number of groups employees divided. Yes, Hayashi, you don't give me the answer. Okay, Manisha, give me. How can we solve this? $633 divided by 7. ओके मैम. मैम 7 9 63. Yes, 7 9 Rashi. मैम मुझे कुछ 7 9 का. 3 minus मैम 3 जूम zeros. करो थोड़ा, मुझे कुछ दिखा नहीं. मैम थोड़ा जूम करो, मुझे कुछ दिख रहा. 3. मैम थोड़ा जूम करो ना. बेटा मैं जूम कैसे करूँ? मैम जूम नहीं कर सकता. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने तरीके से मुझे दिखता नहीं है तो मैं कैसे लिखूं? बोल. मैम पर मेरी तो स्टोरी बाकी है. मैम पर मेरी तो स्टोरी बाकी है. I cannot hear मैम anyone. मैम आप हमें फोटो भी.
I will send the recording, not a photo. Excuse me, मैम, Yes. आपने क्वेश्चन में कंप्लीट इन के बाद क्या लिखा है? Sorry. Okay, we have to do a one change. हमें 633 की जगह पे लिखना पड़ेगा, just because if we are not writing this, we have to change the concept. 9 639. You have to take 639 in place of the 9. मैम 7 Yes, 7. मैम 7 7. मैम कंप्लीट इन अगर के हम बाद क्या ये लिखा? चेंज नहीं करते तो हमें दूसरी मेथड करनी पड़ती, जिसको अभी आपको देर है. We have to take a point for that. So I am changing the रिमाइंडर. मैम 2 रिमाइंडर. Yes, 2 will be remainder. So you can write down that. F4 91 employees are in one group and 2 will be कॉल लगती ना इनको। मैम 639 के ऊपर क्या लिखा है आपने? ऊपर क्या लिखा है? 239 कंप्लीट इन के बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? ये दो जन की एक साथ बातें कैसे सुनो? मैम 629 के ऊपर क्या लिखा है? 639 के ऊपर 91. ओके मैम मैम। कंप्लीट इन के बाद क्या लिखा है? मैम आपने ग्रुप के बाद क्या लिखा है? Employees. 7 ग्रुप के बाद Employees. Sorry, equally. Question में मैम क्वेश्चन में कंप्लीट इन के बाद क्या लिखा है आपने? कंप्लीट वर्क लिखा है, इन नहीं लिखा. कंप्लीट वर्क.